Hello students, I welcome you again. Today we discuss our remaining exercise 17.1 with question number 20. In question number 20, ABCD is a parallelogram. AE perpendicular to AB, CF perpendicular to DA, and this angle is 40. You have to find this angle, this one and this one. Now in this triangle CBE 40 degree plus CEB plus angle A is equal to, reason all of you know that sum of all angle is 180 degree. So 40 plus 90 plus A equal to 120 degree. So value of A is 180 minus 130. So value of A is 50 degree. This one is 50. So angle CBA equal to angle ADC opposite opposite angles of parallelogram. So angle A and B are 50 degree. Now angle A plus angle D equal to 180, sum of adjacent angle of parallelogram. Angle D 50 degree है बेटा. So angle A is equal to 180 minus 50, that is 130 degree. Now same question number 21 is here. बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है. उसमें फिगर नहीं बना रखी, फिगर हमें खुद बनाना है. ABCD is a parallelogram through same vertex of an obtuse angle. The angle between the altitudes, सपोज कीजिए ऑब्ट्यूज एंगल हो तो हम इसको ऑब्ट्यूज बना लेते हैं. पैरेललोग्राम को थोड़ा शेप चेंज कर देंगे. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम. ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं. बिटवीन एंगल 60 डिग्री है. यू हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. आपको पैरेललोग्राम के सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं. Now, so let us start this question. This one 90, this one is also 90. नाम दे दीजिए. This is E, this is F. B, E, D, F is a quadrilateral. So नेम दे देते हैं. इसको एंगल 1 बोल दिया मैंने, इसको 2. So angle 1 plus angle 2 plus angle D plus 60 degree is equal to 360. Angle 1 90 degree, angle 2 90. So this is 360. तो angle D की वैल्यू आ जाएगी बेटा 360 minus 60 minus 180. So angle D is equal to 120. So angle B कंप्लीट नेम देना पड़ेगा बेटा. CBA equal to 120 opposite angles of parallelogram. Now angle A plus angle D is equal to 180, adjacent angles of parallelogram. So angle A आ जाएगा बेटा 180, D की वैल्यू 120 है. So this is 60 डिग्री और यही एंगल आपके पास एंगल C आ जाएगा. Now this is question number 21. Now question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 की फिगर्स बनी हुई है बेटा आपके पास. दिस इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल C इज 55 डिग्री. सो A इज ऑल्सो 55 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम.
Now this one is also a parallelogram. A, E, F, G is also a parallelogram. So angle A is equal to angle GFE equal to 55 degree, opposite angles of parallelogram. This is question number 22. Now question number 23. This is a triangle ABCE. ABC. ABC is a triangle in which BDEF this is given that BDEF is a parallelogram. ये parallelogram है, so BD equal to EF. Now it is also given that DC DCEF is a parallelogram. Parallelogram है, then opposite sides are equal. So from 1 and 2 EF इक्वल है BD के, EF इक्वल है CD के, so BD equal to DC. This is question number 23. Now question number 24. यही फिगर है. Suppose that DE equal to EF. DE equal to EF. Then ABC question है बेटा. ABC is an isosceles triangle. क्या ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा? यस. वाई? देन वाई नॉट? अब यही किया है. अब इसमें क्या होगा, आपको गिवन है कि DE इक्वल है BF के. हम ये वाली साइड्स रब करेंगे क्योंकि साइड्स हम दूसरी लेंगे इसके अंदर. पैरेललोग्राम है. देन BF इक्वल टू DE एंड CE equal to DF from equation 1 and 2. और गिवन क्या है आपको, इसको भी रब कर देते हैं. गिवन DE इक्वल है DF के, सो BF इक्वल टू CE. दोनों तरफ हम क्या ऐड कर देंगे, BF and this one, both sides are equal, so triangle BDF and triangle CDF है. DF इक्वल टू CDE, DF इक्वल टू DE गिवन था, और BF इक्वल टू CE प्रूव कर दिया. एंड वन थिंग वाज आल्सो वी हैव टू प्रूव. नेक्स्ट मेथड से करते हैं बेटा. BDEF पैरेललोग्राम है, तो जो BF है इक्वल होगा DF के, और जो BF है वो पैरेलल होगा DE के. सेम CE पैरेलल होगा DF के. नाउ CE पैरेलल है DF के, CE पैरेलल है, इट मीन्स AF पैरेलल है CE के. सेम यहाँ पे आ जाएगा बेटा, DF पैरेलल हो जाएगा
डी ई पैरेलल हो जाएगा बेटा ए एफ के, और ए एफ पैरेलल हो जाएगा सी ई के। नाउ इधर देखिए बेटा, ए एफ पैरेलल है डी ई के, और डी एफ पैरेलल है ए ई के। यहाँ पे ए नहीं, डी एफ पैरेलल है ए ई के। सो ए एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आ जाएगा, उससे क्या बनेगा कि ए ई इक्वल आ जाएगा डी एफ के, एंड ए एफ इक्वल आ जाएगा डी सी के। बट ये दोनों इक्वल थे, तो यहाँ से ए ई इक्वल आ जाएगा ए एफ के। अब बी एफ इक्वल है ए ई के, और ए एफ इक्वल है ए ई के। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सो दिस इज बिकम ए बी एंड दिस इज बिकम ए सी। सो दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है बेटा, दोनों डायगोनल ओ पे मीट करते हैं, एक्स वाई भी ओ पे इंटरसेक्ट करता है। आपको रीज़न देना है। फर्स्ट पॉइंट है ओ बी इक्वल टू ओ डी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा? बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड है एंगल ओ बी वाई इक्वल टू एंगल ओ डी एक्स। दिस वन ओ बी वाई एंड ओ डी एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड वन है बेटा एंगल बी ओ वाई इक्वल टू एंगल डी ओ एक्स। दिस वन एंड दिस vertically opposite angles. And fourth one is triangle BOY और triangle DOX को congruent करना है। congruent करना है then OB is equal to OD और ये दोनों angle OBY is equal to angle ODX and angle BOY equal to angle DOX. So triangle BOY कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल DOX के एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ABCD पैरेललोग्राम है बेटा। AE एंगल C को बाइसेक्ट करता है, AF एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि ट्रू हैं या फॉल्स है और उनके रीज़न देने हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C ट्रू, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड है बेटा एंगल FAB इज हाफ ऑफ एंगल A। FAB यस, बिकॉज AF is bisector of angle A. Third one is DCE, half of angle C. DCE, same reason, CE is bisector of angle C. फोर्थ पार्ट है बेटा एंगल CEB इक्वल टू FAB। CEB दिस वन एंड FAB। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फोर्थ पार्ट इज फिफ्थ वन पार्ट और रह गया बेटा। नंबरिंग कोई गलत होगी। 1 2 3 4, ये फोर्थ ही था। नाउ फिफ्थ वन में बताना है आपको CF पैरेलल टू
CE parallel to AF. This is CE and this is AF. इसका रीज़न यही आएगा कि 1 and 2 are equal. These are corresponding angles. So lines are parallel. Now question number 27. Question number 27. It is given that ABCD is a parallelogram and AL and CM. This is L and this is M. This is O. Are perpendicular on diagonal BD such that L और M दोनों ही पॉइंट BD पे हैं. आपको AL इक्वल शो करना है CM के. So let us start. ट्राइंगल लिया हमने AOL and triangle COM. OA equal to OC, diagonal bisect each other. Angle ALO equal to angle CMO, each 90 degree. This is take 1 and this one is 2. Angle 1 equal to angle 2, vertically opposite angle. So triangle AOL congruent to triangle COM, angle side angle. So AL equal to CM by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Now question number 18. Question number 28. D, E और F diagonal AC के ऊपर हैं such that AE इक्वल है बेटा CF के. आपको बताना है कि BFDE किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है. तो सबसे पहले बेटा मैंने ट्राइंगल लिया AED और ट्राइंगल लिया मैंने ADE और ट्राइंगल BFC. AD इक्वल है बेटा BC के अपोजिट साइड्स. AE इक्वल है CF के गिवन है. एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 2 एंगल 1. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो ट्राइंगल AED कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा ट्राइंगल BFC के. कॉन्ग्रेंट हो गया देन DE इक्वल आ जाएगा BF के. सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल लेके हम प्रूव कर देंगे. सिमिलरली BE इक्वल टू FD. नाउ DE इक्वल है BF के और BE इक्वल है FD के. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो BFDE इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है बेटा 1 कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. AB 10 है, AD 6 है. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट CD. बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट CD कहा है तो ये बेटा ऐसे मिलेगा आपका एंगल A. शेप दोबारा बनाते हैं. दिस इज A B C D. E पॉइंट पे मिलेगा. अगर हम DE को प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपका F पॉइंट आ जाएगा. तो ऑलमोस्ट इस तरह की आपकी शेप बनेगी. ये 10 है बेटा, ये आपके 6 है. इसको प्रोड्यूस करके मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया. ठीक है. सो दिस वन इज़ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? AD पैरेलल है BC के. इट मीन्स AP इज ऑल्सो पैरेलल टू BF एंड AB पैरेलल टू DC. AB पैरेलल टू DC.
सो जो पी एफ है, सो ये पैरेलल हो जाएगा पी एफ के। सो ए बी एफ पी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल पी इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा बेटा। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए एफ पी एंड ट्राइंगल ए एफ बी। एंगल पी इक्वल है एंगल बी के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ए एफ इक्वल टू ए एफ कॉमन है, ये वाली लाइन कॉमन है, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इट मीन्स ट्राइंगल ए एफ पी कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा ए एफ बी के। कॉन्ग्रेंट हो गया तो जो ए पी है वो इक्वल आ जाएगा ए बी के। अब जो आपका ए पी है वो इक्वल है पी डी प्लस डी ए के, और ए बी आपके पास 10 है, पी डी पी आपके पास 6 है, पी डी निकालेंगे तो पी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और जितना आपके पास पी डी है उतना ही आपके पास सी एफ आ जाएगा, तो सी एफ आ गया 4 सेंटीमीटर। दिस इज 17.1. In next video we discuss 17.2. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.